Arbitration, the meaning of the word arbitration we have done. We were focused upon the meaning of the word arbitration agreement. A basic principle I have told you about arbitration agreement is that no arbitration is allowed without the existence of arbitration agreement. No arbitration allowed without arbitration agreement. If there is no arbitration agreement, we can consider that arbitration is. Court will not allow arbitration under Arbitration and Conciliation Act 1996 arbitration unless it is existing in a form of an arbitration agreement. The word arbitration agreement is being defined under 2B. But if you see the definition, they do not define, they simply recognize that the arbitration agreement mean as given under section 7. As given under section 7. Simple. Simple recognizing it. So basically, we have studied, this is what we have done in the last class. That is, if we see chapter number 2, section 7, section 9. Section 7 to section 9 talks about arbitration agreement of the 1996 Act. So let us start with section 7. Section 7 से start करना था. Section 7 define the word arbitration. Now, section 7 is a defines arbitration. Let us go into the section 7 of the arbitration agreement. Read करते हैं, find out करते हैं essentials of the arbitration agreement and what amounts to arbitration agreement. Section 7. Subsection 1. In this part, the arbitration agreement means an agreement by the party. What they're saying? They're saying arbitration agreement means an agreement by parties. An agreement by parties to submit to arbitration all or certain disputes. All or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship. In relation to defined legal relationship. No, whether contractual or सब बात है. No. Basically, if you see, there are 4 essentials of arbitration agreement. In order to complete the essentials, in order to become an arbitration agreement, these must be the essentials that exist in the arbitration agreement. The first they're saying an arbitration agreement is an agreement. An arbitration agreement must be an agreement. Agreement means, here the word agreement means agreement enforceable by law. पहली बात. Agreement means agreement enforceable by law. When I'm saying agreement enforceable by law, समझ के देखिए, सेक्शन 7 कह रहा है an agreement, arbitration agreement is an agreement. मैंने बोला an agreement for the purpose of arbitration clause under section 7 means
agreement enforceable by law. When I say agreement enforceable by law, what does it mean? Basically, they are talking about Section 10 of Indian contract. When agreement enforceable by law, when agreements are enforceable by, that is what they are making you understand that arbitration agreement must contain all essentials of Section 10 of Indian Contract Act. So all the essentials of Indian Contract Act must be fulfilled. When I say all the essentials of Indian Contract Act must be fulfilled, that means parties must be major, sound mind, the agreement must be lawful object and lawful consideration, lawful object and lawful consideration, not forbidden by law. And last is free will, na? Free consent. Free consent. These 4 to 5 essentials, which are given under Section 10 of the Act of Indian Contract Act, must be fulfilled while making an arbitration agreement. So, सबसे पहले, whenever you want to check an arbitration agreement will be enforceable or will be considered as an arbitration agreement only when it fulfills the conditions of Section 10. Is it clear? What they're saying? An agreement by parties. When I say by parties, की खासियत है arbitration agreement में arbitration agreement cannot be created by third party, I would say, है ना? Inter parties है, privity है, I say contract of privity, contract of privity. That is a contract of privity. That is, the parties per se must make the contract. Parties themselves can only make arbitration. Nobody else can bring the parties to the contract into an arbitration. Arbitration agreement party की consent से उनके बीच में होगा तभी होगा. Right? Next, what they're saying, all or certain disputes. Parties must, if you remember, if you read the first subsection 1, अगर मैं read करूँ तो बोलते हैं, and in this part, the arbitration agreement means an agreement by parties to submit to arbitration. To submit to arbitration, I am not focusing right now, क्योंकि हमको पता है हम arbitration agreement की बात करें. All or certain disputes. All or certain dispute. When I say all or certain disputes, what does it mean? That means, suppose
A and B can agree to refer any one dispute for arbitration or all the dispute between them for arbitration or all disputes between them for arbitration. उनके बीच में और जो disputes हैं उसको भी arbitration के लिए भेज सकते हैं. But if you see the part subsection 1, they are saying all or certain disputes which have arisen or which may arise, हम उसको focus नहीं कर रहे, between the parties in respect of a defined legal relationship. What is important? All or certain dispute जब बात कर रहे हैं तो we have to read with the word in respect to defined legal relationship. Very important. Respect to defined legal relationship. All or certain disputes in respect to defined legal relationship. What is this? In respect to all. तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो वर्ड ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट ये क्वालिफाइड वर्ड है इन रिस्पेक्ट टू डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप. मैं आपको समझाने की कोशिश कर A and B have contract C1, C2, C3, C4, C5, C6. A और B के बीच में इतने सारे contracts. A and B have a contract between them. ठीक है? They have these many contracts: C1, C2, C3, C4, C5, C6. They make a arbitration agreement. Arbitration agreement that all disputes related to contracts will be subject to arbitration. कहते जितने भी disputes related to subject of contract हैं उनके बीच में they will be considered as subject to arbitration. बताइए, this is valid arbitration agreement or not? This is valid arbitration. Yes, answer is yes. I know. Answer is no. This is not. और मैंने आपको इसलिए बोला कि बोलते हैं all or certain dispute in respect to defined legal relationship. All or certain dispute in relation to a defined legal relationship. तो क्या हो सकता है पॉसिबली, ये हो सकता है कि सपोज A and B have a contract C1. इस रिलेशनशिप में वो दो बातें लिख सकते हैं, या तो वन दैट all dispute in relation to C1 are subject to arbitration, or they can say that dispute related to delivery and money payment, है ना, in contract C1 are subject to arbitration. Specified, this is defined legal relationship. किसी एक डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप के रिलेशन के कंटेक्स्ट में, आई कैन से, तो किसी डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में
कोई एक डिस्प्यूट या उस रिलेशनशिप में कोई सारे डिस्प्यूट दे कैन ब्रिंग टू अ सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स अगर उनको C2 के लिए करना है तो उसके लिए अलग से AA बनाना पड़ेगा, C3 के लिए अलग से, C4 के लिए अलग से, C5 के लिए अलग से। हाँ, इसके अंदर वो वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं कि वो दे कैन स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट ऑफ इन रिलेशन टू C2 which is subject to arbitration, or they can make it generally that all dispute related to C2 will be subject to arbitration. But they cannot make a general arbitration agreement. Parties cannot make a general arbitration agreement in relation to every legal relationship they have. They have to specify specific legal relationships. हाँ, हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में अगर वो लिखते थे कि arbitration agreement in relation to C1, C2, 3, C4, C5, C6 are subject to arbitration. That is possible. स्पेसिफाई कर दिया कौन कौन सी वाली बात कर, आप जनरल क्लॉज क्रिएट नहीं कर सकते। इसको सवाल कोई when I'm saying when I'm saying arbitration agreement all or certain dispute, मैंने बोला इसको रीड करना है इट इज प्री क्वालिफाइड टू स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप। व्हेन आई से इसे पढ़ते हैं, the arbitration agreement means an agreement by parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them with respect to defined legal relationship। ये जो वर्ड है ना डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, यानी कि स्पेसिफिक लीगल राइट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, उसको रीड करना है ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट के साथ। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज ए और बी है, उनके बीच में बहुत सारे लीगल रिलेशनशिप हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिलेशनशिप? कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उनके बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5। तो मैंने बोला ऑल डिस्प्यूट्स। ऑल डिस्प्यूट से क्या मतलब? तो क्या क्या ए और बी जनरल जनरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्या? दैट ऑल डिस्प्यूट बिटवीन देम will be governed by 1996 एक्ट? आंसर इज नहीं। ऑल डिस्प्यूट मतलब ये नहीं है, ये जनरल है ना। जनरल क्लॉज होते हैं, जनरल एग्रीमेंट, जनरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नॉट अलाउड। ये जनरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। या फिर वो ये कह सकते हैं कि ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए और बी जरूर हो सकता है ना, और भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, जरूरी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड एनी अदर वे आल्सो। सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, मॉर्गेज कर सकते हो, है ना, हायर एंड परचेज कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने लिखा ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। मान लो उन्होंने एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, उनके बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें लिखा ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन कौन से? डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें लिख दिया डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। उनके बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें से उन्होंने लिखा जो डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट है वो 1996 के एक्ट से गवर्न होंगे। क्या ये अलाउड है? मैंने बोला ये भी अलाउड नहीं है। ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट का मतलब ये नहीं है। ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक लीगल राइट है। मैंने इसे स्पेसिफिक लीगल राइट, तो उसका मतलब क्या है कि जब ए और बी के बीच में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, C1, C2, C3, C4, C5, तो वो इस स्पेसिफिक राइट के लिए, ये स्पेसिफिक हो गया, दिस इज स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप। ये एक स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप है, ये दूसरा स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप एंड सो ऑन। इसके अंदर, इस डायमेंशन के अंदर वो लिख सकते हैं, यहां पे वो कर सकते हैं क्या? ऑल डिस्प्यूट इन रिलेशन टू C1, या फिर वो लिख सकते हैं
डिलीवरी डिस्प्यूट, डिलीवरी डिस्प्यूट इन रिलेशन टू C1, ये वो कर सकते हो। दिस इज नोन एज ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट, इसको बोलते हैं ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट। ये है ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट। यस, स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप मतलब हो गया कि वो किस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बता रहे हैं, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर आप उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कि ए और बी के बीच में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, C1, C2, C3, C4, नहीं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो C1 का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग होगा, C2 का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग होगा, C3 का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग होगा, C4 का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सबका मिला के एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना दिया, ये नहीं अलाउड है ना। हर किसी का अलग। और इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर वो डिसाइड कर सकते हैं कि सारे डिस्प्यूट C1 से रिलेटेड या कोई एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट C1 से रिलेटेड। सेम यहाँ वो उनके पास वो ऑप्शन है, ऑल और सर्टेन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ। डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप क्लियर हो गया। ठीक है, चलो, आगे बढ़े। आप कहोगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो हाँ हाँ, वाई नॉट। वो तो कर ही सकते हैं, जब उन्होंने, वो ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया और उसमें C1 को अलग से लिखा, C2 को अलग से लिखा, C3 को अलग से लिखा, C4 को अलग से लिखा और एग्रीमेंट एक ही बात, ये पॉसिबल हो सकता है। बट आप देखो ना, हर क्लॉज एक स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, ये जनरल नहीं है ना, ये जनरल नहीं है, वो हर स्पेसिफाइड की है। बट यहाँ पे वो जनरली लिख रहे हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन टू, हमारे बीच में जितने भी, वो आने वाले टाइम में भी तो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे ना, फ्यूचर में भी तो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, वो सब इसी से गवर्न होते चले जाएंगे। नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं है। अभी पढ़ूंगा ना मैं, आप हैव अराइजन और मे, और विच मे अराइज बिटवीन देम, अगला लाइन है, हैव अराइजन और विच मे अराइज। इसको भी हमें स्पेसिफाइड लीगल राइट के साथ पढ़ना है, स्पेसिफिक या सर्टेन लीगल राइट या डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है। हैव अराइजन और मे हैव अराइजन स्पेसिफाइड लीगल रिलेशनशिप, तो आप तो आप पास्ट, प्रेजेंट और इवन फ्यूचर डिस्प्यूट्स को सब्जेक्ट, डिस्प्यूट के लिए बना सकते हो, डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना सकते हो। पहली बात, you have a right to make an arbitration agreement in relation to past contracts, past disputes, present dispute or future dispute, doesn't matter। बट वो होगा किससे, इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड, है ना। उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से, तो आप ये लिख सकते हैं कि हमारे और ए और बी के बीच में जितने भी आज तक कॉन्ट्रैक्ट हुए उनका, और जितने भी आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनका डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से सॉल्व होगा। नहीं, आप स्पेसिफाई करोगे कॉन्ट्रैक्ट वन कि जो डिस्प्यूट अराइज हुए और जो फ्यूचर में अराइज होंगे वो सब्जेक्ट हो जाएंगे आर्बिट्रेशन के, यानी कि यू हैव टू स्पेसिफाइड यू आर टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ विच लीगल रिलेशनशिप, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, है ना, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट मेनली इंपॉर्टेंट, है ना।
इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन दिस पार्ट arbitration agreement means an agreement by parties to submit to arbitration all or certain disputes. All or certain disputes. What do you mean by word disputes? All and certain disputes में जो ये word disputes है ये बड़ा important है. Arbitration agreement सिर्फ disputes पे apply होते हैं. सवाल ये है ना. Arbitration agreement are made only for disputes. That it is in relation to disputes only. That is, one party allege something. One party alleges something. Other party denies it. एक पार्टी कुछ अलेज करती है, दूसरी पार्टी उसे डिनाई करती है, तभी वो अलाउ. क्या कहने की कोशिश करते हैं? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ हाउस. ठीक है. दे हैव अ क्लॉज. इन्होंने क्लॉज ऐड की. क्या क्लॉज है? प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय मिस्टर सी. प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी. बताइए, इज इट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्लॉज और नॉट? इज इट एन आर्बिट्रेशन क्लॉज? बताइए. आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज देर इज नो डिस्प्यूट ऑफ प्राइस. जब तक डिस्प्यूट नहीं होगा जब तक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है ना. इट कैन बी एनीथिंग बट इट इज नॉट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए डिस्प्यूट का राइज होना चाहिए. तो अगर ये हो गया कि इन इफ द प्राइस गेट डिस्प्यूटेड द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व बाय सी, वो आर्बिट्रेशन है. पहले डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर समझते हैं. एक मिनट होल्ड रखिएगा प्लीज, है ना. चलिए, ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो रहेगा, प्लीज बताइएगा. यहाँ तक क्लियर. We have done what do you mean by all and certain disputes. What do you mean by the word disputes? ठीक है. तो जब तक डिस्प्यूट नहीं, जब तक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं, उसका कोई फंक्शन नहीं. ठीक है. दैट्स सी. आगे क्या बोलते हैं? डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नहीं. तो डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप दो तरीके का हो सकता है. डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप क्लियर है या नहीं? वी नो डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप इज क्लियर. ये दो तरीके का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल वी नो, है ना. रिटर्न है, स्पेसिफाइड है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू है. बट व्हाट इज नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल? नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप समझिए ना. फॉर एग्जांपल कोई टॉर्ट्स हो गई है ना. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कोई. यू नो ना व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ना. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कोई. या सपोज सपोज ये डे टू डे सप्लाईज है.
डे टू डे टास्क है कोई, है ना, ये भी आर्बिट्रेट किए जा सकते हैं, है ना। लेबर डिस्प्यूट आ गया है कोई, सक्सेशन का डिस्प्यूट हो गया है, ये भी आर्बिट्रेट किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट, कोई भी सिविल मैटर को कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल को स्पेसिफाई करने की कोशिश की है, तो अगर हम देखने की कोशिश करें, दे आर फोकसिंग अपॉन, है ना, सिविल, सिविल नेचर। तो सिविल नेचर के जितने भी मैटर है, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप जितने भी सिविल नेचर के हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में, चाहे वो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में, इट मे बी आर्बिट्रेटेड, वो उसको आर्बिट्रेट किए जा सकते हैं। क्लियर होगा? लेट अस गो इनटू सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 एंड 5 तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ते हैं। तो पहले बेयर एक्ट खत्म करेंगे, फिर उसके बारे में बहुत कुछ और भी पढ़ेंगे। डीजीएस की क्लासेस करेंगे आज शाम को, ठीक है। एंड वी स्टार्ट विद सब्जेक्ट, आप बोलो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सर, कोई मुझसे पूछ रहा है, एक मिनट रुकिएगा बस, फिर बताइएगा। सर, डिस्प्यूट है अराइजन और मे अराइजन इन लीगल रिलेशनशिप के साथ कैसे रीड किया जा सकता है? कैसे रीड करा जाएगा? जैसे मैं रीड कर रहा हूँ वैसे किया जाएगा, मतलब रीड हो नहीं रहा, तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा उसे। अरे यार शिकम है, सवाल क्या पूछा था आशिका ने, फिर बताता हूँ क्या 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 था। कि डिस्प्यूट हैव अराइजन और मे अराइजन को लीगल रिलेशनशिप में कैसे यूज। अरे भैया क्यों नहीं किया, पहले तो ये बताओ क्यों ये है लीगल रिलेशनशिप, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सी, इसका जो इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट अराइज हो चुका है उसका भी आर्बिट्रेशन हो सकता है, और जो डिस्प्यूट अराइज होगा, है ना, हैव अराइजन, है ना, ऑलरेडी डिस्प्यूट एक्सिस्टिंग डिस्प्यूट मे कम इन एग्जिस्टेंस, एक्स और वाई एक एग्रीमेंट बना सकते हैं कि भैया सी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हमारे बीच में अराइज होंगे वो, या जितने भी अराइज होंगे वो, सबका क्या होगा, आर्बिट्रेशन, है ना। इसीलिए स्पेसिफाइड लीगल रिलेशनशिप, वो ऐसे तो नहीं बना सकते ना जनरली, एक हवा में एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और बोला कि तुम्हारे मेरे बीच में जितने भी झगड़े हैं वो, और आने वाले टाइम में जितने भी झगड़े होंगे वो हम आर्बिट्रेट करेंगे। कौन से झगड़े, कैसे झगड़े, कहाँ के झगड़े, कौन से डिस्प्यूट से रिलेटेड? हाँ, किसी कोई सवाल है पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं